Okay, see, in the last lecture, we have started with the quantum. See, in the last lecture, we started with the quantum number, and the first quantum number we have done is which one? Principal quantum number. Now, what is principal quantum number? It is denoted by the symbol n, and it represents the main shell to which electron belong. It represents the main shell to which electron belong. And we have done one table that what is it? It determines the distance of the electron from the nucleus. मतलब अपना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने दूर रहेगा. सो इट डिटरमाइंस द साइज ऑफ एन एटम. तो ये क्या डिटरमाइन करेगा कि एटम का साइज कितना रहेगा. दूसरा, इट ऑल्सो डिटरमाइन व्हाट द एनर्जी. It also determines the energy of electron in an atom, correct? And number of electron in the each orbit is given by which formula? 2n square. And we have done one table. The first energy level, like energy level are 1, 2, 3, 4. They can be also called denoted by which letter? K, L, M, N. And number of electron in the each shell are given by which? How many? 2n squares, so 2, 8, 18, 32. So in the first shell we can have maximum 2 electron. Second shell we can have 8 electron. Third shell we can have 18 electron. And the fourth shell we can have the 32 electron. ये हमारा फर्स्ट क्वांटम नंबर था. देन हम लोगों ने स्टार्ट किया था सेकंड क्वांटम नंबर. सेकंड क्वांटम नंबर इज कॉल्ड एज एजिमुथल क्वांटम नंबर or subsidiary quantum number, or is also called as the orbital angular momentum quantum number. And this quantum number denoted by symbol L. ये क्या डिटरमाइन करता है? सबशेल. शेल के अंदर शेल, तो सबशेल. It determines the subshell to which electron belongs in a given atom. मतलब कौन से सबशेल में हमारा इलेक्ट्रॉन रहेगा, सबशेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा. And it also defines what? The shape of the orbital occupied by the electron. हमारा ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में रहेगा उस ऑर्बिटल का शेप कैसा रहेगा, करेक्ट? ये. एंड ऑल्सो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ओके, नेक्स्ट. यहाँ पे हमने टेबल देखा था. सबशेल के सिंबल कौन कौन से देखे थे? देखो हम लोगों ने, बिकॉज इसके ऊपर ही आगे का पूरा बेस है. सबशेल के सिंबल के थे, अगर L का वैल्यू 0 रहेगा तो सिंबल ऑफ द सबशेल इज S. L का वैल्यू अगर 1 रहेगा तो सिंबल ऑफ द सबशेल इज P. L इक्वल टू 2 रहेगा तो सबशेल सिंबल इज D. एंड L का सिंबल अगर 3 रहेगा तो सबशेल सिंबल इज F. तो एटलीस्ट इतने तुम्हें ध्यान में रखना है. 0, 1, 2, 3 तो क्या आएगा यहाँ पे? S, P, D, F. लेकिन अगर आप आगे कंटिन्यू करोगे 4, 5, 6 तो फिर यहाँ पे क्या लिखना है? G, H, I, G, H, I, K. मतलब आगे सिंपल है मतलब. और उसके बाद हमने एक टेबल बनाया था. अगर n इक्वल टू 1 है, अगर हमारा फर्स्ट शेल है तो फर्स्ट शेल में एक ही सबशेल रहेगा, 1s, एक ही सबशेल. अगर हमारा सेकेंड शेल है, सेकेंड ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट में 2 सबशेल रहेंगे, 2s एंड 2p. अगर हमारा थर्ड शेल है, थर्ड शेल में 3 सबशेल रहेंगे, 3s, 3p, 3d. और अगर हमारा फोर्थ सबशेल है तो फोर्थ शेल है तो फोर्थ शेल के अंदर 4 सबशेल रहेंगे, 4s, 4p, 4d एंड 4f, करेक्ट? एंड दैट इज नंबर ऑफ सबशेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल. मतलब हमारे पास जितने शेल रहेंगे उतने ही हमारे पास क्या रहेंगे? सबशेल रहेंगे. मतलब अगर हमारा शेल नंबर 4 है तो नंबर ऑफ सबशेल भी कितने रहेंगे? 4 रहेंगे. अगर हमारा शेल नंबर 3 है तो नंबर ऑफ सबशेल भी कितने रहेंगे? 3 रहेंगे. और number of electron, the number of electron in the each subshell are given by which formula? 2a into bracket 2l plus 1. Number of electron in the each subshell are given by the formula 2a into bracket 2l plus 1. So in the S subshell we can have maximum how many electron? 2 electron. In the P subshell we can have how many electron? 6 electron. D subshell we can have how many electron? 10 electron. And F subshell we can have total how many electron? 14 electron. The number of electron
in the each subshell are given by this formula, correct? Or angular momentum, orbital angular momentum of electron is given by which formula? h upon 2 pi root l into bracket l plus 1. यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था. Now today we'll start with the next quantum number. That is, the next quantum number is magnetic quantum number, magnetic quantum number, and this quantum number denoted by the symbol ml. मतलब m ही है लेकिन आगे l लिखते हैं ml. So magnetic quantum number denoted by the symbol ml. What is this quantum number? This quantum number determines the gives the orientation of ऑर्बिटल. मतलब जिस ऑर्बिटल में हमारा इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल कैसे घूम सकता है, कितने तरह से घूम सकता है. दिस क्वांटम नंबर determines the orientation of orbital. Okay. Or I can say this quantum number, or I can say this quantum number gives orientation of the orbital in a given subshell. This quantum number, मतलब either write down the first sentence or write second. मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा अभी? शेल के अंदर कहाँ पे रहेगा? सबशेल. तो शेल के अंदर सबशेल है, तो सबशेल में अगर हमारा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो सबशेल में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल बोलेंगे. फिर ये ऑर्बिटल कितने तरह से घूम सकता है, उसे कितने पॉसिबल ओरिएंटेशन पॉसिबल है. सो दिस क्वांटम नंबर गिव्स ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल in a given subshell. This quantum number gives orientation of the orbital. मतलब हमारा ऑर्बिटल कितने तरह से या कैसे ओरिएंट कर सकता है in a subshell. And it also gives यहाँ पे आ गया. It gives a possible number, or it also gives possible number of orientations. It also gives what? Possible number of orientation. मतलब हमारे पास कितने possible number of orientation possible है. Possible number of orientation. Okay. अब इसका पहले हम टेबल बनाते हैं, टेबल में और क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले क्वांटम नंबर क्या बताएगा कि हमारे शेल के अंदर सबशेल्स है. सबशेल मतलब के अंदर जो ऑर्बिटल्स है उस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन किस तरह रहेगा, एंड हमारे हर एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन कितने पॉसिबल है. एक टेबल में ड्रॉ करूंगा यहाँ पे. L m equal to 2l plus 1, or I'll write here L
m का वैल्यू आएगा m l इज इक्वल टू माइनस l टू प्लस l, और m इज इक्वल टू 2l प्लस 1। देखो l m l इज इक्वल टू माइनस l टू प्लस l। अगर हमारे l का वैल्यू 0 रहेगा, l अगर 0 रहेगा मतलब विच ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल। अगर हमारा l 0 रहेगा मतलब विच ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल। तो यहाँ पे देखो ml का वैल्यू क्या है, -0 टू +0। -0 टू +0 मतलब 0, करेक्ट। -0 टू +0 मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे l 0 है, l 0 इंटू 2 0 0, तो हाउ मेनी ओरिएंटेशन, 1 ओरिएंटेशन। मतलब ml का वैल्यू a के 0 आया है, 0 मतलब कितने ओरिएंटेशन आ गए, 1। सो नंबर ऑफ ओरिएंटेशन, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन कितने होंगे। मतलब अगर हमारा इलेक्ट्रॉन s सबशेल में रहेगा, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन s सबशेल में रहेगा तो उसको एक ही ओरिएंटेशन रहेगा, एक ही। 0 मतलब 1 ओरिएंटेशन, 0 नामी नंबर 1। अभी देखो यहाँ पे l इक्वल टू 1 लेंगे, l इक्वल टू 1 मतलब विथ सबशेल p, l इक्वल टू 1 मतलब p सबशेल। तो अभी l का वैल्यू 1 है, तो l का वैल्यू 1 है मतलब यहाँ पे क्या आएगा, -1 टू +1। -1 टू +1 मतलब कितना आएगा, -1 0 and +1, -1 0 and +1। तो L will have which values, -L to +L मतलब -1 0 and +1, करेक्ट। तो यहाँ पे m इक्वल टू 2l + 1, l का वैल्यू कितना था, 1 था, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, 2 1 2 + 1 3, तो 3। तो यहाँ पे 3 ओरिएंटेशन है, -1 0 and +1। मतलब अगर हमारा इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में रहेगा तो p ऑर्बिटल के पॉसिबल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। कौन से 3, -1 0 and +1, ये 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है। l इक्वल टू 2, l इक्वल टू 2 मतलब अगर हमारा इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में रहेगा, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन l का वैल्यू 2 मतलब कौन सा ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में रहेगा तो d l का वैल्यू 2 है, तो 2 मतलब देखो यहाँ पे -2 टू +2, -2 टू +2 तो कितना आएगा, -2 -1 0 +1 एंड +2। हाउ मेनी ओरिएंटेशन, 1 2 3 4 5। मतलब अगर हमारा इलेक्ट्रॉन अगर d ऑर्बिटल में रहेगा तो पॉसिबल ओरिएंटेशन अबाउट d ऑर्बिटल्स आर गोइंग टू बी हाउ मेनी, 5 ओरिएंटेशन, 1 2 3 4 5 ओरिएंटेशन। देखो यहाँ पे एक ही ओरिएंटेशन था, यहाँ पे 3 ओरिएंटेशन थे और यहाँ पे 5 ओरिएंटेशन। अगर देखो d का वैल्यू 2 था, 2 2 4, 2 2 4 +1 5, तो 5 ओरिएंटेशन। और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन 3 मतलब f ऑर्बिटल में रहेगा, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में रहेगा, f ऑर्बिटल, f मतलब कैसे, l का वैल्यू 3, l इक्वल टू 3 मतलब विच ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल। l का वैल्यू 3 मतलब कितना आएगा, -3 टू +3, तो यहाँ पे आएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3, -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। सो हाउ मेनी ओरिएंटेशन, 7। देखो चेक करो, 7, l का वैल्यू 3 था, तो 3 2 6, 3 2 6 +1 7। सो हाउ मेनी ओरिएंटेशन वी गॉट, 7 ओरिएंटेशन। मतलब यह हमें मालूम होना चाहिए कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में रहेगा तो s ऑर्बिटल में उसको एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है। कौन से मालूम, इसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन अगर हमारा इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में रहेगा तो स्पेरिकली घूमता रहेगा, स्पेरिकली, सर्कुलर नहीं, स्पेरिकली, स्पेरिकली। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन स्पेरिकली एक ही तरह से घूमता रहेगा, स्पेरिकली घूमता रहेगा। लेकिन अगर हमारा इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में रहेगा, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन p और कितने ओरिएंटेशन, 3 ओरिएंटेशन, 3 ओरिएंटेशन कौन से आते हैं मालूम है, यहाँ पे आते हैं px,
PY, PZ, ऐसे अलग अलग 3 ओरिएंटेशन आते हैं, PX, PY, PZ, लेकिन इनके बारे में बात नहीं करेंगे, बात करेंगे। तो अभी इतना ही ध्यान में रखना है कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है तो s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक ही तरह से घूम सकता है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है तो p ऑर्बिटल के 3 ओरिएंटेशंस है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में तो d ऑर्बिटल्स के 5 ओरिएंटेशंस है। और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में है तो f ऑर्बिटल के 7 ओरिएंटेशंस है। करेक्ट, 7 ओरिएंटेशन है। और l का वैल्यू कौन सा, ml का वैल्यू कौन से फॉर्मूला से मिला, -L2 + L और m = 2l + 1। तो ये हमारा, तो व्हाट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दिस क्वांटम नंबर गिव्स the orientation of the orbital in the given subshell। मतलब सबशेल्स के अंदर जो हमारे ऑर्बिटल्स रहेंगे उनका ओरिएंटेशन कैसा रहेगा, या ओरिएंटेशन के बारे में बात करेंगे। एंड इट आल्सो गिव्स द पॉसिबल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन। करेक्ट, तो ये हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हुआ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हुआ। एंड हियर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल in a shell, total number of orbital in a shell equal to which formula, n²। मतलब कौन से शेल में कितने ऑर्बिटल रहेंगे, कौन से शेल में कितने ऑर्बिटल रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल विल बी गिवन बाय व्हिच फार्मूला, n²। सो अगर हम लोगों ने शेल्स की बात कर रहा हूं मैं, शेल्स की, तो अगर हमारा पास फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल, तो फर्स्ट शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 1², मतलब 1। अगर हमारे पास सेकेंड शेल है तो सेकेंड शेल में कितने ऑर्बिटल्स है, 4। अगर हमारे पास थर्ड शेल है तो थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे, 3², मतलब 9 ऑर्बिटल। फर्स्ट शेल हैज ओनली 1 ऑर्बिटल, कैसे मैं बताता हूँ। फर्स्ट शेल हैज ओनली 1 ऑर्बिटल, सेकेंड शेल हैज 4 ऑर्बिटल, थर्ड शेल हैज 9 ऑर्बिटल, and fourth shell has 16 ऑर्बिटल। कैसे हम लोग देखो, अगर ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट में खाली क्या रहेगा, 1s रहेगा, फर्स्ट में 1s। देखो फर्स्ट शेल में एक ही ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल है, 1s है। सेकेंड शेल में कौन से ऑर्बिटल रहेंगे, 2s एंड 2p। सेकेंड शेल में कितने ऑर्बिटल रहेंगे, 2s एंड 2p। s का एक होता है, s का एक ऑर्बिटल, p के कितने आएंगे, 1 2 3, p के 3 है। देखो p रहेगा तो 3 ऑर्बिटल, s रहेगा तो 1, और 3 + 1 4। तो s मतलब 1 ऑर्बिटल, p मतलब 3 ऑर्बिटल, 3 + 1 4। मतलब सेकेंड एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। यहाँ पे 3s, 3p, 3d, 3s 3p। 3s मतलब 1 ऑर्बिटल, s मतलब 1 ऑर्बिटल, p मतलब 3 ऑर्बिटल, p मतलब s मतलब 1 ऑर्बिटल, p मतलब 3 ऑर्बिटल, एंड d मतलब हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल। अगर ऐड करोगे 5 + 3 8 + 1 9, तो थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल्स है, 9। थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल्स है, 9। देखो 3s, s मतलब ओनली 1 ऑर्बिटल, p मतलब, p के कितने ऑर्बिटल्स है, 3, तो p के 3 ऑर्बिटल, d में कितने ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, 5, तो ये 5, तो 5 + 3 9 8, 8 + 1 9, तो थर्ड शेल में 9 ऑर्बिटल्स है। तो ये हमारा एक टेबल है, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल। So number of orbital in a shell, the first shell has only 1 orbital, second shell has a 4 orbital, third shell has a 9 orbital, and fourth shell
हैज 16 ऑर्बिटल। जो लास्ट टाइम एक लड़कियों को डाउट था, नंबर ऑफ ऑर्बिटल थे वो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन द ईच शेल इज गिवन बाय व्हिच फॉर्मूला, n स्क्वायर, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ईच शेल आर गिवन बाय व्हिच फॉर्मूला, 2n स्क्वायर। तो लास्ट टाइम का हमारा कंसेप्ट क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच शेल। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ईच शेल और ईच, एक मिनट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ईच शेल आर गिवन बाय व्हिच फॉर्मूला, 2n स्क्वायर। तो ये हमारा कंसेप्ट था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ईच शेल, करेक्ट। और यहाँ पे क्या देखा, नंबर, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने रहेंगे, n स्क्वायर। तो 1 ऑर्बिटल 4 ऑर्बिटल, ये हमारा वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अभी आगे हम लोग बात करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। Spin quantum number, it is denoted by the symbol, spin quantum number, it is denoted by the symbol ms. Okay, spin quantum number का symbol ms रहेगा। What is spin quantum number? देखो हमें अभी क्या देखा था, इलेक्ट्रॉन, नॉर्मली हमें मालूम है कि अगर सेंटर में न्यूक्लियस रहेगा तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करते करते खुद के अराउंड भी रिवॉल्व करेगा, आइदर इन द क्लॉकवाइज मैनर, आइदर इन द क्लॉकवाइज मैनर। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो घूमेगा ही, न्यूक्लियस के बाजू में गोल गोल घूमते रहेगा, लेकिन खुद के एक्सेस में आइदर इट कैन बी गोइंग इन द क्लॉकवाइज मैनर और इलेक्ट्रॉन कैन बी गोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज मैनर। मतलब इलेक्ट्रॉन while revolving around the nucleus, electron while revolving around nucleus, it's also spin about its own axis। मतलब इलेक्ट्रॉन वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाजू में घूमते घूमते रहेगा, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपने एक्सेस में के बारे में भी कैसे घूमेगा, आइदर क्लॉकवाइज और इट कैन स्पिन एंटी क्लॉकवाइज, आइदर इट कैन स्पिन एज अ क्लॉकवाइज और इट कैन स्पिन एज अ एंटी clockwise, clockwise or anti-clockwise. So okay, so electron while revolving around the nucleus, it's also spin about its own axis. It can spin either in clockwise or in anti-clockwise direction। देखो अर्थ, हम लोग एग्जांपल अर्थ का ले लो, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, लेकिन while revolving around the sun, earth is also revolving about its own axis। मतलब अर्थ सन के सराउंडिंग में रिवॉल्व हो रही है, बट एट द सेम टाइम अर्थ अपने एक्सिस के बाजू में भी घूम रही है, करेक्ट। तो सिमिलरली सेम तरह से इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है, अपने न्यूक्लियस के बाजू में घूम रहा है, और लेकिन अपने न्यूक्लियस के बाजू में घूमते घूमते खुद के एक्सिस के बाजू में घूम रहा है। कैसे घूमेगा, आइदर क्लॉकवाइज
or it can be what? Anti-clockwise. So here electron while revolving around the nucleus, it also spin about its own axis. अपने खुद के axis के बाजू में भी घूमेगा. कैसे? Either in the clockwise or in the anti-clockwise direction. Either in the clockwise or in the anti-clockwise direction. And spin of electron shown by arrow pointing in upward and spin of electron is shown. इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसे रहेगा? तो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शोन बाय एरो पॉइंटिंग इन अपवर्ड एंड इन डाउनवर्ड. मतलब एरो से ये अगर स्पिन किया, ये अपवर्ड एरो है, तो दूसरा स्पिन डाउनवर्ड एरो. तो अगर ये अपवर्ड एरो को अगर आप बोलते हो क्लॉकवाइज, तो डाउनवर्ड एरो के आप क्या बोलोगे? एंटी. ठीक है, ऐसा कंपल्सरी नहीं. कोई बोलेगा कि मैं इसे क्लॉकवाइज बोलूं तो ठीक है, चलेगा. अगर इसे क्लॉकवाइज बोलोगे तो इसे एंटी क्लॉकवाइज बोलना है. अगर इसे क्लॉकवाइज बोलोगे, अगर फर्स्ट वाला तुम्हारा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, तो सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कैसे रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज रहेगा. या अगर सेकेंड वाले को एंटी क्लॉकवाइज बोलते हो, सेकेंड वाले को अगर क्लॉकवाइज बोलते हो, तो फर्स्ट वाला क्या बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज बनेगा. सो स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज शोन बाय एरो पॉइंटिंग इन द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन. मतलब इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसे बताएंगे हम लोग? either by showing the arrow pointing in the upward direction or by arrow pointing in the downward direction. अगर मैंने upward arrow को clockwise बोला, तो downward को मुझे क्या बोलना? एंटी क्लॉकवाइज बोलना. लेकिन अगर ये upward arrow है, इसे अगर मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल एंटी क्लॉकवाइज, तो डाउनवर्ड एरो जो बनेगा उसे मुझे क्या बोलना पड़ेगा? क्लॉकवाइज. मतलब स्पिन कैसा है वो एग्जैक्टली डिफाइन नहीं है, खाली हमें इतना ही है, एक रहेगा क्लॉकवाइज, दूसरा रहेगा एंटी क्लॉकवाइज. सो आइदर यू कैन शो द अपवर्ड एरो, हमें अपवर्ड. ओके. और एवरी ऑर्बिटल हैज 2 इलेक्ट्रॉन. मतलब हर एक ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे. विद एवरी ऑर्बिटल हैज 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन. मतलब हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है. हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है. देखो, अगर ये मैंने ऑर्बिटल ड्रॉ कर दिया, तो ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन है. लेकिन दोनों का स्पिन कैसा होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए. मतलब अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक का स्पिन अगर बता दिया क्लॉकवाइज, तो दूसरे का स्पिन कैसे रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज. एक का स्पिन अगर रहेगा क्लॉकवाइज, तो दूसरे का स्पिन रहेगा एंटी क्लॉकवाइज. सो एवरी ऑर्बिटल हैज 2 इलेक्ट्रॉन with the opposite spin. One is spinning in the clockwise and other one is spinning in the anti-clockwise. और ये हमें कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. करेक्ट. एवरी ऑर्बिटल मतलब हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आप लिख सकते हो? 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो. और 2 इलेक्ट्रॉन मतलब दोनों का स्पिन सेम नहीं होगा. मतलब दोनों स्पिन 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन लिखने, दोनों का स्पिन सेम नहीं पॉसिबल. दोनों का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज नहीं पॉसिबल. कंपल्सरी एक क्या होना चाहिए? क्लॉकवाइज, दूसरा क्या होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज. या अगर भी ऐसा ड्रॉ कर सकते हो कि एक डाउनवर्ड एरो पहला, बाद में ऐसा, तो भी चलेगा. मतलब बोथ कैन नॉट हैव द सेम स्पिन. दोनों का क्लॉकवाइज स्पिन नहीं चलेगा, दोनों का एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलेगा. एक होना चाहिए क्लॉकवाइज, दूसरा होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज. एक होना चाहिए कैसे भी, मतलब दोनों का स्पिन अलग होना चाहिए. तो व्हाट इज स्पिन क्वांटम नंबर? जैसे अर्थ हमारा अर्थ क्या कर रहा है? अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन,
and at the same time revolving about its own axis. मतलब अर्थ सन के आजू बाजू में रिवॉल्व हो रहा है लेकिन अपने एक्सिस में भी रिवॉल्व हो रहा है. सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस and it's also spin about its own axis, and about its own axis it can spin either in the clockwise or in the anti-clockwise, and spin of the electron is shown by the arrow pointing in the upward and arrow pointing in the downward. अगर आप क्लॉक अपवर्ड एरो को क्लॉकवाइज बोलोगे तो डाउनवर्ड एरो को एंटी क्लॉकवाइज बोलो. अगर आप अपवर्ड एरो को एंटी क्लॉकवाइज बोलोगे तो डाउनवर्ड एरो को क्लॉकवाइज बोलो. दोनों में कैसे भी आपको लगेगा वैसे. लेकिन एवरी ऑर्बिटल हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन. हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन में दोनों का स्पिन सेम नहीं होगा. दोनों क्लॉकवाइज नहीं होंगे, दोनों एंटी क्लॉकवाइज नहीं होंगे. एक होगा क्लॉकवाइज, दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज. करेक्ट. तो इस तरह हमने चारों क्वांटम नंबर के बारे में कंप्लीट किया है. अभी मैं एक टेबल बनाऊंगा जिस टेबल में हम चारों क्वांटम नंबर के बारे में बात करेंगे. चारों क्वांटम नंबर के बारे में बात करेंगे. ओके. तो यहाँ तक कुछ डाउट है आपको? यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो पूछो. नाउ आई जस्ट ड्रॉ वन टेबल. एक टेबल ड्रॉ करूंगा मैं. n शेल नंबर. 1 minute. Okay, so here we are having the n. n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आई विल जस्ट ड्रॉ वन टेबल. Now here we'll say n is called as the principal quantum number. Then here we have the L is called as the azimuthal quantum number, and L can have which value? 0 to n minus 1. Then we are having the L quantum number, that is magnetic quantum number, can have the value minus L, 2 plus L, minus L, 2 plus L, correct? Then we can say number of electrons in subshell. Then we have number of electrons in shell, and last we'll have here spin quantum number. देखो, I have made the 4-5 column. First one is the principal quantum number. Second one is the azimuth L. L मतलब which quantum number? Azimuthal quantum number. ML मतलब which quantum number? ML मतलब magnetic quantum number. See, this is principal quantum number. This is azimuthal quantum number. This is magnetic quantum number. And last here I am having spin quantum number. Okay.
लेकिन ये तीन हमारे श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन थे, ये अलग क्वांटम नंबर है। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि श्रोडिंगर इक्वेशन ने कौन से तीन क्वांटम नंबर दिए थे, श्रोडिंगर इक्वेशन ने कौन से तीन क्वांटम नंबर दिए थे, तो कौन से तीन क्वांटम नंबर दिए थे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर अलग था। ओके, अभी अगर मैंने यहाँ पे n इक्वल टू 1 ले लिया, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 मतलब विच शेल के, अगर n 1 रहेगा तो यहाँ पे n 1 1 माइनस 1 0, तो l का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। l 0 मतलब विच ऑर्बिटल? s ऑर्बिटल। l 0 मतलब विच ऑर्बिटल? s ऑर्बिटल, मतलब इसका नाम क्या आएगा? 1s नाम आएगा। 1s क्यों? बिकॉज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, l का वैल्यू 0 मतलब सबशेल कौन सा आ रहा है? s, तो इसका नाम क्या बनेगा? 1s। अगर l 0 रहेगा, l 0 रहेगा तो m का वैल्यू क्या आएगा? -0 टू +0 मतलब 0 आएगा। ओनली वन ओरिएंटेशन, ओनली वन ओरिएंटेशन। तो एक ही हमारे पास ओनली वन ऑर्बिटल है, ये हमारा एक ही ऑर्बिटल है, ओनली वन ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। एक ऑर्बिटल 0 मतलब वन ऑर्बिटल। देखो यहाँ पे m0 अगर l 0 रहेगा तो 0 इंटू 2 0 प्लस 1, ओनली वन ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल हमारे पास। और एक ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ, देखो फर्स्ट एनर्जी लेवल इज 1, 1 इज कॉल्ड एज अ के, L इक्वल टू व्हाट? 0 टू n माइनस 1, 0 टू n माइनस 1, 0 मतलब 0 माइनस 1, 0 माइनस सॉरी n का वैल्यू 1 है, 1 माइनस 1 0, 0 टू 0 मतलब 0, एंड l का वैल्यू 0 मतलब विथ सबशेल, s सबशेल, l 0 मतलब s सबशेल। m के लिए फॉर्मूला क्या है? माइनस l टू प्लस है, l का वैल्यू 0 होता है यहाँ पे, 0 मतलब -0 टू +0 मतलब 0, 0 मतलब ओनली वन ओरिएंटेशन, 0 मतलब ओनली वन ओरिएंटेशन, मतलब वन ऑर्बिटल। वन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? वन ऑर्बिटल्स है यहाँ पे, वन ऑर्बिटल है। वन ऑर्बिटल्स में, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। और यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 आते हैं। तो देखो हमारे फर्स्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो हमारे पास एक ही ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक स्पिन करेगा क्लॉकवाइज, दूसरा स्पिन करेगा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, दूसरा और लेने के बाद आपको समझ में आएगा। सेकेंड एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एज एल, सेकेंड एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एज एल, 2l, करेक्ट। तो अगर सेकेंड एनर्जी लेवल अगर l है, तो अभी यहाँ पे देखो 2, n का वैल्यू 2 है, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 एंड 1। l 0 मतलब विच ऑर्बिटल? s, l 1 मतलब विच ऑर्बिटल? p। तो ये 2 बनेगा 2s और ये बनेगा 2p, ये बनेगा 2s एंड 2p। n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 0 मतलब विच ऑर्बिटल? s ऑर्बिटल, तो ये क्या बनेगा? 2s। l इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1 मतलब विच ऑर्बिटल? 2p, तो 2s में 2p। एंड देन हियर अगर l 0 रहेगा, l अगर 0 रहेगा तो m भी 0 आएगा, लेकिन l अगर 1 रहेगा तो m कितना आएगा? -1, 0 एंड +1। अगर l 1 रहेगा, अगर l 1 रहेगा तो m कितना आएगा? -1 टू +1, तो -1 0 +1। तो यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स है? 1 2 3 ऑर्बिटल्स है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6 आएंगे। एंड सो हियर तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो सेकेंड एनर्जी लेवल में 2 सब शेल्स है, एस और पी।
S में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2. P में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6. 2 + 6 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 8. और हमें मालूम है हमारे सेकेंड एनर्जी लेवल का कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स का होता है? 8 इलेक्ट्रॉन का. सेकेंड एनर्जी लेवल का कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स का होता है? 8 इलेक्ट्रॉन का. मतलब अगर हमारा L 0 रहेगा तो 2s ऑर्बिटल, L अगर 1 रहेगा तो 2p ऑर्बिटल, 2s एंड 2p ऑर्बिटल. करेक्ट. और अगर यहाँ पे S से L1 से मिला m का वैल्यू और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन. 6 + 2 8. तो अभी डायग्राम ड्रॉ करोगे, देखो S और A एक ही ऑर्बिटल है, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, 1 2 3. यहाँ पे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन दोनों का स्पिन सेम नहीं रहेगा. एक रहेगा क्लॉकवाइज, दूसरा रहेगा एंटी क्लॉक. यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, ये पहला ऑर्बिटल है, दूसरा और तो यहाँ पे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन. मतलब हर एक बॉक्स में आपको 2 इलेक्ट्रॉन लिखने, हर एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों का स्पिन सेम होना नहीं चाहिए. तो देखो आपको पता चलेगा सेकेंड एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन. अभी हम लोग लेंगे थर्ड. n = 3 KLM. n = 3 मतलब कौन सा आएगा? KLM. तो अगर हमारा n3 रहेगा, n3 रहेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 to 3 - 1. 0 to 3 - 1. 3 - 1 is 2. तो यहाँ पे आएगा 0, फिर आएगा यहाँ पे 1 और फिर यहाँ पे आएगा 2. ओके. एंड 0 मतलब विच ऑर्बिटल? S ऑर्बिटल. 1 मतलब विच ऑर्बिटल? P ऑर्बिटल. 2 मतलब विच ऑर्बिटल? D ऑर्बिटल. तो ये कौन सा बनेगा फिर? 3s 3p 3d. 3s 3p 3d. अभी देखो L 0 रहेगा, L 0 रहेगा तो M कितना आएगा? -0 to +0 मतलब 0 आएगा. L अगर 1 रहेगा तो L1 तो -1 to +1 मतलब कितना आएगा? -1 0 एंड +1. और L अगर 2 रहेगा, L अगर 2 रहेगा तो -2 to +2 मतलब यहाँ पे कितना आएगा? -2 -1 0 +1 एंड +2. देखो यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2. यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स है? -1 0 +1 3 ऑर्बिटल्स है, तो कितने इलेक्ट्रॉन? 6. और यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स है? 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल. एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना आएंगे? 10. और अभी आप काउंट करोगे 10 + 6 16 + 2 18. 18 इलेक्ट्रॉन. मतलब अगर हमारा थर्ड एनर्जी लेवल है, थर्ड एनर्जी लेवल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? 18 रहेंगे. थर्ड एनर्जी लेवल में टोटल इलेक्ट्रॉन 18 रहेंगे, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेंगे? S में. 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेंगे? P में. और 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेंगे? D. तो ये हमारा 3s. थर्ड में कौन से सब शेल्स है? 3s 3p एंड 3d. देखो फर्स्ट एनर्जी लेवल में एक ही सब शेल है 1s. सेकेंड शेल में कौन से सब शेल्स है? 2s एंड 2p. थर्ड सब शेल में कौन से सब शेल्स? थर्ड शेल में कौन से सब शेल्स है? 3s 3p एंड 3p. एंड देन हियर अगर डायग्राम ड्रॉ करोगे तो एक ही ऑर्बिटल है, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स है और यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स. D के लिए 5. एंड एवरी ऑर्बिटल हैज 2 इलेक्ट्रॉन. एवरी ऑर्बिटल हैज 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए. यहाँ पे 1 2 1 2 1 2. Correct. 4. Fourth shell is called as what? Fourth shell is called KLMN. The fourth shell is called as the N shell. Fourth shell is called as the Nth shell. अभी देखो N का वैल्यू 4 है,
तो यहाँ पे 4 minus 1, 4 minus 1, 4 minus 1 is called as 3. तो 0 to 3, 0 to 3 मतलब क्या लिखोगे? 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. And L का वैल्यू 0 मतलब विथ सबशेल S, 1 मतलब विथ सबशेल P, 2 मतलब with subshell D, and 3 मतलब with subshell F. And so it can be called as a 4S. This can be called as 4P. This can be called as 4D. And this can be called as 4F. तो ये हमारे सबशेल थे 4S, 4P, 4D and 4F. ओके, तो अभी देखो अगर L 0 रहेगा, L 0 रहेगा तो M कितना रहेगा? -0 to +0 मतलब 0. अगर L1 रहेगा, L1 रहेगा तो -1 to +1 मतलब कितना आएगा? -1, 0 and +1. L अगर 2 रहेगा तो कितना आएगा वैल्यू यहाँ पे? -2, -1, 0, +1 and +2. और L अगर 3 रहेगा तो कितना आएगा? -3, -2, -1, 0, +1, +2 and +3. What is the formula for ML? -L2 + L, -L2 + L. करेक्ट, तो ये वैल्यूज आ गए. तो अभी देखो यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स है तो 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स है, 1 2 3 5 ऑर्बिटल्स मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स है तो 14 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा तो देखो S subshell has got 2 electron, P subshell has got 6 electron, D subshell has got 10 electron and F subshell has got 14 electron. करेक्ट, ये हम लोग एक टेबल में किया था, अगर आपको याद रहेगा तो. एक मिनट, देखो यहाँ पे एक टेबल किया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ईच सबशेल. S subshell has got 2 electron, P subshell has got 6 electron, D subshell has got 10 electron and F subshell has got 14 electron. तो यहाँ पे भी सेम आ रहा है, S subshell has got 2 electron, P subshell has got 6 electron, D subshell has got 10 electron and F subshell has got a 14 electron. और सारे अगर ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? 32. और हमारे फोर्थ एनर्जी लेवल का कैपेसिटी कितना रहता है? 32 इलेक्ट्रॉन का रहता है. फोर्थ एनर्जी लेवल का कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन का रहता है? 32. ऐड करो, 2 + 6 8, 8 + 10 18, और 18 + 14 करोगे तो कितना आएगा? 32 आएगा. तो हमें पता चला फर्स्ट शेल का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का है, सेकेंड शेल का कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन का है, थर्ड शेल का कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन का है, और फोर्थ शेल का कैपेसिटी 32 इलेक्ट्रॉन. उसका और क्या पता चला कि फर्स्ट शेल में एक ही सबशेल रहेगा, कौन सा? 1s. सेकेंड शेल में 2 सबशेल रहेंगे, कौन से? 2s एंड 2p. थर्ड शेल में 3 सबशेल रहेंगे, 3s 3p एंड 3d. और फोर्थ शेल में 4 सबशेल रहेंगे, 4s 4p 4d एंड 4f. ना अगर स्पिन क्वांटम नंबर अगर लिखना है तो देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों का स्पिन सेम नहीं हो सकता. यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन लिखने लेकिन दोनों का स्पिन अलग. एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन लेकिन दोनों का स्पिन अलग. और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 14 इलेक्ट्रॉन्स है, 14. 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये हमारा 3 क्वांटम नंबर हो गया। करेक्ट। ये चारों क्वांटम नंबर का समरी हो गया। अभी इसके ऊपर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इनके ऊपर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो ये कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। Example 1. How many subshell and orbitals are present in n equal to 3? n equal to 3 के लिए कितने सबशेल्स और कितने ऑर्बिटल्स है? अगर वहां से आप डायरेक्ट करोगे तो भी पता चलेगा। n equal to 3 के लिए कितने सबशेल्स है? तो देखो n equal to 3 है, n equal to 3 के लिए कितने सबशेल्स है? 3, 3s 3p 3d। और कितने ऑर्बिटल्स है? ऑर्बिटल्स कितने आएंगे? देखो 1, 3 का स्क्वायर 9। देखो 9 यहाँ पे आ रहे हैं, 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9। लेकिन मैं वापस थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए इसलिए वापस बताता हूँ। अगेन वी कैन हैव सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, azimuthal quantum number and magnetic quantum number. n equal to 3 KLM, n equal to 3। L का फॉर्मूला क्या है? 0 to n minus 1, 0 to n minus 1, 0 to n minus 1 तो 3, 2 3 minus 1 2 तो 0 1 and 2, 0 1 2। S0 मतलब which orbital? S orbital। 1 मतलब which orbital? P orbital। 2 मतलब which orbital? D orbital। And then in this orbital अगर L 0 रहेगा तो M भी कितना आएगा? 0। M का फॉर्मूला कौन सा है? माइनस L 2 प्लस L। तो अगर M 0 रहे, L 0 रहेगा तो M भी 0 आएगा। अगर L 1 रहेगा तो ये कितना आएगा? -1 0 एंड +1। और ये अगर 2 रहेगा तो L M कितना आएगा? -2 -1 0 +1 एंड +2। उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा? हाउ मेनी सबशेल? नंबर ऑफ सबशेल। देखो ये कौन सा सबशेल है? 3s, ये आएगा 3p और ये आएगा 3d। तो हमारे पास कितने सबशेल्स है? 3। कौन से? 3s 3p 3d। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आएंगे? ये एक ऑर्बिटल है, ये 3 ऑर्बिटल है और ये 5 ऑर्बिटल है। तो कितना? 1 + 3 + 5। एस ऑर्बिटल हमेशा 1 होता है, पी ऑर्बिटल हमेशा 3 होते हैं और डी ऑर्बिटल हमेशा 5 होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर 9। तो हमारा एक क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड शेल। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो हमने यहाँ पे भी बोल सकते, देखो सेकेंड शेल, ये हमारा सेकेंड शेल है। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2s एंड 2p। s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 6 इलेक्ट्रॉन। तो सेकेंड शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 8। बस सेम टेबल, लेकिन प्रैक्टिस होना चाहिए इसलिए वापस ड्रॉ करते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो अगेन आई विल हैव द क्वांटम नंबर n l ml। n इक्वल टू सेकेंड शेल, सेकेंड n इक्वल टू सेकेंड। l का फॉर्मूला क्या है? 0
2 n minus 1, 0 to n minus 1, n का वैल्यू 2 है, 2 minus 1, तो यहाँ पे आएगा 0 and 1. 0 मतलब which और सा s, 1 मतलब p. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m का फॉर्मूला क्या है? माइनस एल टू प्लस एल, माइनस एल टू प्लस एल, माइनस एल टू प्लस एल मतलब 0, माइनस 0 टू प्लस 0, 0, और यहाँ पे 1, माइनस 1, माइनस 1, 0 एंड प्लस 1, माइनस 1, 0 एंड प्लस 1, तो माइनस 1, 0 एंड प्लस 1. तो अभी देखो यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल है, मतलब एक ही ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2. यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन. तो here first will have the 2 electron, second will have the 6 electron. 2 plus 6, total number of electrons are 8. So total electrons are 8. S subshell में 2 electrons है, P subshell में 6 electrons है, total electrons are 8. So therefore we can say total number of electrons in second shell is 8. Total number of electrons in the second shell are 8. Okay. और एक दो सम देखना. Find number of electrons for which, find number of electron for which, number of electron for which n is equal to 2, m equal to 0 and s is equal to plus half. मतलब ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो गए जिनका n 2 होगा, जिनका m 0 होगा और s प्लस हाफ होगा. हमारे पास ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जिनका n 2 होगा, m 0 होगा और s प्लस हाफ होगा. करेक्ट. कौन से n इक्वल टू 2? तो अगेन आई विल जस्ट ड्रॉ टेबल. n n 0 to n minus 1, m l minus l to plus l. अभी देखो यहाँ पे n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 2 है. करेक्ट. तो अगर यहाँ पे 2 minus 1 लिखा, 2 minus 1 1, तो यहाँ पे आएगा 0 एंड यहाँ पे आएगा 1. 0 मतलब s ऑर्बिटल, 1 मतलब p ऑर्बिटल. l 0 मतलब s ऑर्बिटल, n 1 मतलब p ऑर्बिटल. ये हमारा बनेगा कौन सा ऑर्बिटल? 2s. ये बनेगा 2p. l, अगर l 0 रहेगा तो mp कितना आएगा? माइनस 0 टू प्लस 0, 0. और अगर l 1 रहेगा तो कितना आएगा? माइनस 1, 0 एंड प्लस 1. माइनस 1, 0 एंड प्लस 1. तो उन्होंने क्या बोला? n इक्वल टू 2 चाहिए. तो ये यहाँ पे n इक्वल टू 2 हो गया. m इक्वल टू 0 चाहिए. m इक्वल टू 0 मतलब देखो यहाँ पे भी एक 0 आ रहा है और यहाँ पे भी एक 0 आ रहा है, 2 0 आ रहे हैं. करेक्ट. और स्पिन, अगर स्पिन देखोगे तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन. और यहाँ पे कितने ऑर्बिटल है? 3 ऑर्बिटल है. 3 ऑर्बिटल में 1 2 1 2 और 1 2. लेकिन हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? जिनका n2 चाहिए, जिनके लिए n2 चाहिए, m 0 चाहिए और s क्या चाहिए? प्लस हाफ चाहिए. तो अभी देखो n2 मतलब ये हो गया,
N2 के बाद M0 मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये और एक जीरो में एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ से हमें मिलेगा एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है लेकिन दोनों में से एक रहेगा क्लॉकवाइज, मतलब एक का स्पिन रहेगा प्लस हाफ, एक का रहेगा माइनस हाफ, तो प्लस हाफ वाला एक इलेक्ट्रॉन। बाद में यहाँ पे भी देखो, ये -1 के लिए, ये 0 के लिए, ये +1 के लिए, हमें 0 चाहिए, तो यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन्स है, दो इलेक्ट्रॉन में एक रहेगा प्लस हाफ, एक रहेगा माइनस हाफ, तो हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा प्लस हाफ। करेक्ट। इसका मतलब n इक्वल टू 2, m इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू हाफ, मिले हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कॉम्बिनेशंस के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इस कॉम्बिनेशन के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। देखो m0 है, m0 के पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक है क्लॉकवाइज, दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन हमें प्लस हाफ चाहिए, तो ये प्लस हाफ ले लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे -1 0 +1, तो 0 वाला चाहिए, 0 वाला ये, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक ने यहाँ से एक ले लिया, तो 1 + 1 2। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दो इलेक्ट्रॉन्स है। करेक्ट। और एक लास्ट टॉपिक, लास्ट, राइट ऑर्बिटल notations, write orbital notations for, write orbital notation for electrons in orbital with the following quantum number. Write the orbital notation for electrons in orbital with the following quantum number. करेक्ट। तो अभी यहाँ पे देखो n a, सबसे पहले a, n इक्वल टू 2 और l इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 2 मतलब क्या आएगा 2, एंड l इक्वल टू 1 मतलब विच ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, 2p। b, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 4 मतलब 4, एंड l2 मतलब विच ऑर्बिटल, d। एंड लास्ट n इज इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, तो 3 मतलब 3 और l2 मतलब d, बिकॉज हमें मालूम है l के वैल्यूज का टेबल अगर आपको मालूम रहेगा तो ये लर्न ही करना है। l 0 1 2 3, l0 मतलब क्या रहेगा s, l1 मतलब क्या रहेगा p, l2 मतलब क्या रहेगा d, और l3 मतलब क्या रहेगा f। सिंपल सिंपल। करेक्ट। l0 मतलब s, तो यहाँ पे देखो 1 था, 1 मतलब विच ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, और यहाँ पे l2 था, l2 मतलब विच ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल। करेक्ट। तो ये हमारा होगा यहाँ पे। तो वी आर फिनिश विद द 4 क्वांटम नंबर। 4 क्वांटम नंबर से ध्यान में रखना, 3 क्वांटम नंबर कहाँ से आए थे, श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आए थे, और चौथा क्वांटम नंबर बाद में अलग से आया है। करेक्ट। तो 4 क्वांटम नंबर के बारे में हुआ। नेक्स्ट पार्ट विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, द रिमेनिंग पार्ट विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो विल स्टॉप इट ओवर हियर। अगर आपको कोई डाउट पूछना है तो पूछ सकते हैं। और आज मैंने लास्ट टाइम आपको एमसीक्यूज नहीं दिए थे, क्योंकि दोनों टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज थे, तो जो रिमेनिंग एमसीक्यूज है दैट आई विल गिव इट टू इन द नेक्स्ट लेक्चर। एक देखो, एक लास्ट पार्ट अगर आपको यहाँ पे देखना है, फर्स्ट एनर्जी लेवल में क्या रहेगा, फर्स्ट में रहेगा 1s, सेकेंड एनर्जी लेवल में क्या रहेगा 2s 2p,
थर्ड एनर्जी लेवल में क्या रहेगा? 3s 3p 3d। फोर्थ एनर्जी लेवल में क्या रहेगा? 4s 4p 4d 4f। फिफ्थ एनर्जी लेवल में क्या रहेगा? 5s 5p 5d 5f 5g। सिक्स एनर्जी लेवल में क्या रहेगा? 6s 6p 6d 6f 6g 6h। और सेवंथ एनर्जी लेवल में क्या रहेगा? 7s 7p 7d 7f 7g 7h एंड 7i। लेकिन नॉर्मली हमें जरूरत किसका होता है? खाली S P D and F। हमें आगे जो GHI जो लिखे हुए GHI जो लिखे उनका जरूरत नहीं। देखो 1s में खाली 1s। सेकेंड एनर्जी लेवल में क्या आएगा? 2s 2p। थर्ड एनर्जी लेवल में क्या आएगा? 3s 3p 3t। फोर्थ एनर्जी लेवल में क्या आएगा? 4s 4p 4d 4f। फिर आगे F के बाद अल्फाबेट एक एक अल्फाबेट बढ़ते जाएंगे। 5 के लिए क्या आएगा? 5s 5p 5d 5f 5g। 6 के लिए S के लिए क्या आएगा? 6s 6p 6d 6f 6g 6h। और 7 के लिए क्या आ जाएगा? 7s 7p 7d 7f 7g 7h 7i। करेक्ट। लेकिन हमें नॉर्मली किनके ऑर्बिटल यूज करना है? खाली S P D and F, इनके बारे में हमें यूज करना है। करेक्ट। कुछ पूछना है तो पूछो। कोई डाउट है आपको? ठीक है, नहीं है, 1 मिनट। हेलो विष्णु सर। हाँ सर।